कमिटमेंट वगैरह कुछ तो भी पूछे क्या? आई एम ऑलमोस्ट 35 नाउ। रिस्क लिए तो लाइफ में रस्क आता जी। अभी आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा होना, मुझे लीन बॉडी। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। अप्सरा के बोलते सितारा। ओह थैंक यू। अभी लेडीज से फ्रिज में डाल रहे, डब्बा में डाल रहे, राइस हाँ। कुकर में डाल रहे। लड़के डालने से प्रॉब्लम नहीं है तो लड़की डालने में क्या तकलीफ है? लड़के लोगों ने कम किया क्या हरकतें? उनका तो नॉर्मलाइज हो गया है। चलो ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है। నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ సంతోష్. ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఒక మోడలింగ్ ప్యాషన్ ఎంచుకొని మోడల్ టైటిల్స్ గెలుచుకొని క్రౌన్స్ గెలుచుకొని ఒక మిస్సెస్ ఏలూరులో కావచ్చు, మిస్సెస్ కేటగిరీ, మిస్సెస్ క్వీన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో కావచ్చు, అండ్ రైజింగ్ స్టార్స్ అందులో ఒక క్రౌన్ గెలుచుకొని ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సితార ప్రియ గారు. నమస్తే. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు. బాగున్నారు అంటే తెలుగు కొంచెం 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 వస్తుంది నాకు. కొంచెం కొంచెం వస్తుంది, వచ్చినాం మేము. ఓకే, దట్ మచ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. आपका लाइफ जर्नी कैसे, మీ జర్నీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? तो मेरा शादी से पहले मेरा चाइल्डहुड ऑलमोस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, नथिंग एल्स आफ्टर दैट. तो आफ्टर 12th, when I was pursuing my degree, at that time I got married. So after that, I after my marriage, I've got 3 kids, 3 daughters. So middle one was a little bit, she was not well. She was having some problem in her brain. So she passed out by 5 years, after 5 years. So right now I'm having 2 child. One is 13 years and one is 3 years. All are daughters. In between this, after my last daughter, when she was born, after that I thought, I'm almost 35 now. So You're people- 35? Yeah. looking 16, 17. Oh my god. Not that much. So Because of your makeup, ma'am. no, without makeup also I don't look like 35. Okay. So after that I thought that doing modeling or being in my fashion field, being in this field, fashion field, I was very eager to do that from before my marriage, from my childhood. Okay. So I did not get that much chance to do or to prove myself in this field. So at first I thought that okay, let's try on makeup field. I thought that I'll be pursuing that makeup course. So while I was doing my makeup course, at that time what happened, some models came to our institution. In the academy they used to sit and our educator, she used to do the demonstration on her. By seeing the model I thought that something happened. So I thought that why not, let's give a try. We'll try once. So the person who was giving the opportunities to the model, I contacted with her. So there was some issue. So she said that I could not be a model because my nose is very small. Who said? The one whom I contacted. Okay. One woman. Yeah, girl. So she said that my nose is very small, so I don't think I could do that. So after thinking that, one day she told me to come on her workshop after a few months. So she said to come on my workshop. There I will teach you how to walk, how to give poses and everything. So I also went there for my next level. Then after doing that was 2 days course. 2 days course. So after that, whenever I approach her that can I do, because there was a WhatsApp group regarding that. In that group she used to give, post opportunities that there is makeup demonstration like this opportunity. She used to
send on the WhatsApp group. So after that, whenever I asked her that can I do this or can I do that, every time 1 or 2 times she responded. Then she started ghosting. That no response from her side. आपके बारे में क्या वो नेगेटिव रहता है क्या? She is negative on you. Yeah, I don't know. Maybe because I do not talk much. Generally, I talk very little. Okay. But if I get used to, then I talk more than enough. So she said that when I used to approach her, she just ghosted me. कोई भी बात ही नहीं करती है. तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया. Then I said her that if you are having any problem in me, as because she is my mentor now, because I have done her workshop classes. Then she is my mentor. She had to guide me that what I should do, being as I am having a dream to be a model, and I chose her as my mentor. Then what is her duty? To show me the way. I cannot change my nose right now because it is by birth. And other thing, there is in beauty, I feel that there is no, what to say, no requirement of facial whatever you are having, facial आँख नाक मुंह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मेन इम्पोर्टेंस क्या है? आपका कॉन्फिडेंस कितना है. कॉन्फिडेंस. आप कितना दूसरे के सामने जाके अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. अभी मेरा नाक छोटा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो मेरे मम्मी पापा को जाके पूछना पड़ेगा मेरा नाक छोटा क्यों है. वो प्लास्टिक सर्जरी करवा बोल के वो तो नहीं कर सकती मैं. उसको बोलना था. उसको कराना पड़ेगा. तो फिर बाद में मैंने उसको पूछा कि अभी अगर मेरे में कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोलो दैट मैं क्या चेंज कर सकती अभी मेरा नाक को छोड़ के दूसरा में, और क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकती ताकि मुझे भी एक अच्छा मॉडल बनना है, मुझे भी अच्छा चांसेस चाहिए. तो अभी मुझे तुमको ही देना पड़ेगा. आप उसको आपका नाक पसंद है आई थिंक. हाँ, नाक मेरा नाक पसंद नहीं है. तो पसंद नहीं है तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती. तो फिर मैंने बोलने के बाद वो क्या बोल रही है कि बीच में मैंने एक बात और भी बोला कि अगर आपको मालूम ही था मैं मॉडल नहीं बन सकती, क्योंकि बिफोर दैट यू सेड मी वंस दैट यू आर नॉट ए मॉडल, देन आपको मुझे पहले ही बोलना चाहिए था कि मैं वर्कशॉप पे नहीं आना. वर्कशॉप पे लाके फिर नहीं अभी आप नहीं कर सकते, आपको ऐसा होना, मुझे लीन बॉडी चाहिए, मुझे स्लिम बॉडी चाहिए. दिस इज नॉट फेयर इनफ. हाँ, तब तो ये बातें आपको स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि मैं 25 से ऊपर लोगों को नहीं लेती, या फिर मैं ऐसे फैट बॉडी या फिर चबी बॉडीज को मैं नहीं लेती. आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए. किधर है ये मॉडलिंग क्लास पे और क्या क्लास में? तो मैंने उसको मैसेजेस किया था फिर लास्ट में. फिर मैंने उसको बोला कि यही, क्योंकि मुझे उतना बात करना, किसी को उतना बोलना मुझे पसंद नहीं है. तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो, और बोलने का भी जरूरत नहीं है. उसको भी मैंने बोला कि यही दिस वन इज द लास्ट मैसेज आई एम सेंडिंग टू यू. इसके बाद और कभी भी मैं तुमको कोई मैसेज नहीं करूंगी कि तुम मुझे अपॉर्चुनिटी देना और मैं काम करना नहीं चाहिए. उसी दिन रात से मेरा शुरू हुआ जर्नी, सर्च करना इंस्टाग्राम कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, देखेंगे, क्योंकि अभी कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं, जो भी है खुद को करना पड़ेगा. और मैंने जब क्या बोलूं मैंने जब चैलेंज ले लिया, मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है, देन तो आई हैव टू सर्च बाय माय ओन. तो बेस्ट ऑप्शन इंस्टाग्राम चालू हुआ, इंस्टाग्राम ढूंढना. मैंने काफी सारे मतलब क्या शो किधर है बोल के? नहीं इंस्टीट्यूट के लिए क्या? मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन एम वही था कि मुझे मेकअप क्लासेस में मॉडल जैसा बन के जाना है, मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. मैंने सोचा ही नहीं, पेजेंट के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा. तो ऐसा मैंने ऑलमोस्ट जितने मेकअप स्टूडियो है सबको शायद भेज दिया होगा मैसेजेस कि अगर आपको कोई भी मेकअप के लिए मॉडल चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करो बोल के. ऑलमोस्ट सबको भेज दिया होगा उसी रात में, एक पूरा मैसेज पूरा सबको भेज दिया. तो नेक्स्ट डे मतलब बात करने के लिए आया. तो मैंने अभी तक स्टार्टिंग में 3 मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गई, 3. फिर आया जब मैं मिसेस सेलूर का
जो मैंने कंपटीशन में गई थी पेजेंट शो में, फिर वो वाला मुझे अचानक से दिखा, क्योंकि मैं वही सर्च कर रही थी ज्यादा, तो आप जो सर्च करोगे वही आपके फीड में आता रहेगा। तो वो एनजे फैशन शोज बोल के, मतलब एलूर में कंडक्ट हो रहा था मेरा फर्स्ट, हाँ एलूर, मेरा फर्स्ट पेजेंट शो। इसके पहले मैं गई थी मोक्ष सर के उधर। तो पेजेंट शो मेरा फर्स्ट एलूर में है और मेरा फर्स्ट रनवे शो कवाडीगुडा में है। ओके। तो उस टाइम पे मैंने, मतलब जो डायरेक्टर थे, शो डायरेक्टर, मैंने उनको बोला कि अभी तो मेरा शो इधर है, रनवे शो के लिए मैंने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, मोक्ष सर के इधर ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दिया, तो मुझे तो उधर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं उधर का वॉक सीख लेके, वॉक ही है ना, तो वॉक सीख लेके मैं इधर आके कर लूंगी, मॉर्निंग को आ गया तो हो जाता। तो वो लोग भी बोला ओके ओके ठीक है, हो जाएगा। तो स्टार्टिंग, मतलब ये मॉडलिंग फील्ड में स्टार्टिंग मोक्ष सर के उधर हुआ, कवाडीगुडा से, नेकलेस मॉल, उधर से स्टार्टिंग हुआ। स्टार्टिंग होने के बाद मेरा 2 दिन का शो था, आई मीन रनवे शो था। तो मैंने 3 डिजाइनर्स के साथ बैक टू बैक 2 दिन मैंने किया। तो अंदर अंदर थोड़ा एक रहता है ना, स्टार्टिंग जब मैं फर्स्ट वॉक कर रही थी उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत डर था, अरे कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या लोग क्या देख के क्या सोचेंगे। लेकिन अच्छा हुआ, वो लोगों ने सोचा मैं मिस हूँ, मुझसे सु बोल के नहीं सोचा। लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैं मिसेस कैटेगरी से मैं पार्टिसिपेट करूंगी। फिर उधर जाने के बाद रनवे शोज में तो कोई मिसेस कुछ भी नहीं रहता, सब सेम है, जस्ट रनवे होता जो। हाँ। तो मैं कर लिया, मेरा फर्स्ट शो मेरा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट डे मैं गई एलूर में। आपका फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस कैसा हुआ? वही तो फर्स्ट शो का, नहीं फर्स्ट शो एक्सपीरियंस ఎలా ఉంది? फर्स्ट शो it was first time I was walking on the ramp. I was very nervous. I don't know what people will say, what people will look at me. You know how to walk, how to stand, how to... No. No idea about that. Okay. I just saw that time my director, show director, which was, sorry, she was our choreographer, Monica Yadav. She taught us little bit. मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ। वो तो मतलब परफेक्ट नहीं होता ना, किसी भी शो में जाने के लिए थोड़ा बहुत तो और भी सीखना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए तो मेरा इंस्टाग्राम जिंदाबाद, इंस्टाग्राम में ही रील देखो, पूरा इंस्टाग्राम जिंदाबाद है। हाँ पूरा इंस्टाग्राम में रील देखना, कैसे वॉक कर रहे मॉडल्स, कैसे क्या करना, पोजेस, टर्निंग्स, उधर से देखा। फिर स्टार्टिंग मेरा कोरियोग्राफर मोनिका यादव मैम, उन्होंने दिखाया ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो वही मेरा फर्स्ट शो मोक्ष सर के उधर। तो इट वाज टू गुड। उससे मुझे मतलब एक डर रहता है ना, गाड़ी में जब, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही, मैं जब पहले गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी चलाने के टाइम पे मुझे मालूम है ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये नहीं रहता ब्रेक, नीचे रहता। ये बोले तो पूरा गायब हो जाता। नहीं, गियर तो रहता ना, ये क्लच ब्रेक मालूम है सब, लेकिन कभी जिंदगी में गाड़ी तो रास्ते पे उतारा नहीं। तो एक डर रहता था। फिर मुझे बोला कि घर से मुझे बोला कि तुमको अगर गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग स्कूल के सीख के आओ। तो मेरा एक वीक पॉइंट बहुत है, मुझे अगर किसी ने बोला कि मैं नहीं कर सकती तो वो जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक मुझे शांति नहीं होगा। तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आ जाता है। वो जब तक होगा नहीं मुझे मतलब पीस नहीं है। तो फिर मैं बोला तो ठीक है, ड्राइविंग स्कूल से जब सीखना है तो ड्राइविंग स्कूल से सीख के आके गाड़ी चलाती। ड्राइविंग स्कूल में मैं शायद 3 दिन गई होंगी, 1 महीने में 3 दिन। और 3 दिन में लास्ट डे जब मेरा टेस्ट लेते थे ना, मतलब टेस्ट लेते हैं, उस टाइम पे बस 8 करना उधर सिखाया, 8 करना मैं जाके उधर किया। 8 and 8 या 2 है ना, आरटीओ ऑफिस में रहता हाँ, आरटीओ ऑफिस में। तो 8 करना वो मुझे बाहर सिखाया ग्राउंड में, 8 करना मैं अंदर जाके करी। ओके मुझे मालूम ही नहीं है। तो मुझे देख के दूसरी एक लड़की बोल रही है अरे इनको तो गाड़ी चलाना आता होगा इसीलिए तो वो एक ही बारी में कर लिया। तो मेरा जो ट्रेनर है वो बोल रहा है अब भी वो आके अब भी सीखी, एज तो अंदर ही करके उनको बाहर किया भी नहीं। तो ऐसा ही है मेरा, मुझे बोला नहीं होता तो वो मैं तो करके दिखाती। ऐसा करके
फिर वॉक नहीं आ रहा बोल के सब कुछ देख लेके इंस्टाग्राम में पूरा सर्च कर लेके फिर मैं जाके वॉक किया। फर्स्ट टाइम उतना खास नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट शो थोड़ा फर्स्ट थोड़ा डिजाइनर। थोड़ा बिट लिटिल बिट नर्वस रहता ना। फर्स्ट टाइम तो बहुत नर्वस थी मैं, नर्वस बोला तो बहुत ही ज्यादा नर्वस। तो सेकंड डिजाइनर का जब शो था, आई मीन जब वॉक था, उस टाइम पे थोड़ा और एनर्जी आया अंदर, नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे याद आया कैमरा की तरफ ही देखना, लोग क्या देख रहे हैं, कौन तुमको देख रहे हैं, नहीं देखना। सेकंड एक्सपीरियंस। थर्ड एक्सपीरियंस में बकाशाली के साथ था मेरा नेक्स्ट ड्रेस। उस टाइम पे तो बाप रे वो ड्रेस बहुत ही छोटा था। मैं कैसे पहन के जाना, मैंने उनको बोला जाके ये ड्रेस पहन के मैं कैसे जाऊँ, वॉक कैसे करना। नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो चलो कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी डिजाइनर बकाशी शॉर्ट पहनता, आपको भी शॉर्ट दे दिया। मुझे भी शॉर्ट पहना दिया। अभी क्या करना, चलो ठीक है जो होगा होगा देखेंगे बोल के तो वॉक कर लिया। उस टाइम पे जाके मतलब एक डर जो रहता है वो पूरा निकल गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे से शुरू हुआ वॉक, तो ऑलमोस्ट सेकेंड डे तो वॉक करके तो आ गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो डिजाइनर है ज्वेल शारोन, वो बोला कि फर्स्ट डे तुमने जब वॉक किया था उस टाइम पे तुम थोड़ा बहुत नर्वस थे, लेकिन आज तो तुमने एकदम बिल्कुल भी तुमको डर नहीं था और तुम्हारा वॉक बहुत ही अच्छा था। कॉम्प्लीमेंट आ गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेरा। आपका एनर्जी लेवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल्स बूस्ट हो गया। फिर गई मैं एलूर नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट डे। जाने के बाद मैं सुबह को पहुंची, जाके सुबह को उनका एक बार स्टेज रिहर्सल था। एलूर का क्राउन है क्या वो? ये मेरा फर्स्ट क्राउन है, इसीलिए तो पहन के आई है। ओके ओके। या एलूर पे आपको कौन सा कैटेगरी, कौन सा मिसेस कैटेगरी में फर्स्ट विनर आया था, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप? ओके डन। तो उस टाइम पे मतलब मैंने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना था वेस्टर्न वेयर में। तो वो मैंने इवाना डिजाइनर से रेंटेड लिया था। वो वो गाउन मतलब इतना अच्छा था, मतलब गाउन देख के ही फ्लैट, बाकी और कुछ भी वॉक क्या करो वो देखने का उतना नहीं है। तो वो गाउन ऐसा टेल्ड गाउन था, पूरा टेल मतलब काफी लंबा टेल गाउन है। तो सब लोग बोल रहे थे कि मैं इसको चीपिरी गाउन बोलते हैं उसको। कौन सा गाउन? चीपिरी, यू नो दैट स्वाइपिंग, झाड़ू मारने का। वो एक बार आप चले तो पूरा क्लीन हो जाता। मैं तो झाड़ू मार के ही आई, कोई बात नहीं है। वो लोग धो लिया बाद में। तो वो गाउन से मुझे लगता है, मुझे जितना फील होता है, मेरा जो क्राउन आया वो गाउन और मेरा कॉन्फिडेंस, वो दोनों की वजह से आया। ओके ओके। लेकिन वो गाउन मतलब अभी भी मुझे याद आया तो मुझे फील होता है इतना अच्छा गाउन था और ब्लैक कलर में था, तो मुझे बहुत अच्छा सूट किया। एंड और एक क्वेश्चन है मेरे पास, बोले तो कौन सा शो में भी जजमेंट रॉन्ग दिया बोल के और पैसे लेके विनिंग उसको दिया बोल के, आप कौन सा शो में मालूम हो आपको? मालूम तो लग रहा, मुझे पता तो नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। कौन सा शो में हो? नहीं बोलूंगी मैं नाम। ऐसा बोलना तो सही नहीं है, बट ऐसा मुझे फील हुआ। बिकॉज एक तो ऐसा था कि उनको उतना अच्छा वॉक करना नहीं है, पोजेस देना नहीं है, पता नहीं, मुझे दूसरों के बारे में मुझे कमेंट करना नहीं है, बट स्टिल एक शो में तो ऐसा हुआ। आपको ऑफर आया था इतना पैसे दो विनिंग आपको देता बोल के? ऐसा मैंने अप्रोच ही नहीं किया ना। हो सकता है जो लोग अप्रोच कर रहे होंगे उनको बोला होगा, लेकिन मैंने ऐसा अप्रोच किया नहीं है। कैसे मालूम फिर आपको? मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि एज इफ मैं भी वॉक कर रही हूँ, मैं भी वॉक देख रही हूँ, सीख रही हूँ, मुझे भी तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना एटलीस्ट। हाँ, मेरा जर्नी ज्यादा दिन का नहीं है। आप कॉम्पिटिटर लाइक उसको आपको कंपटीशन ही ना, उसका वॉक आपको अच्छा नहीं लगता, वो ट्रू है वो? नहीं, अभी एज इफ हमारे ग्रुप में जो भी मतलब सपोज मैं किसी भी कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ, आगे वाला जो भी वॉक कर रहा है दिखता तो है ना, अंदर से बाहर से। इफ इन योर कंपटीशन ऐश्वर्या राय आल्सो देयर, उसका वॉक आपको पसंद नहीं आता, कई को बोले तो एक ही कैटेगरी में कॉम्पिटेट कर रहे थे ना आप, डर लगता था।
मुझे मुझे ऐसा फील होता है, सपोज चलो अरे ये लड़की तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, आप बाहर से कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आपके अंदर को तो मालूम है ना। ओके, इनसाइड। हाँ, आपको अंदर को तो मालूम है कि नहीं वो लड़की बहुत अच्छा किया, अंदर की बात को तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना। बाहर चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन सपोज कोई आपसे ज्यादा अच्छा वर्क करे, एक रनवे शो नहीं, एक पेजेंट शो में इम्पोर्टेंट क्या है, वर्क इम्पोर्टेंट है, पोजेस इम्पोर्टेंट है, आपका लुक इम्पोर्टेंट है, वो 3 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सपोज आपका लुक अच्छा है, आपको वर्क नहीं आता, आप कैसे भी पोज मार के आ जा रहे, तो बाकी दूसरे वाले किसी को भी तो वही फील होगा ना, अरे इसको क्या देख के दिया। क्योंकि मेन जो आप वर्क करके वो रैंप को हिट कर रहे हैं, रैंप पे वर्क करने के टाइम पे आपका पोस्चर, आपका वर्क, आपका पोजेस कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ग्रूमिंग क्लासेस का जरूरत ही नहीं पड़ता ना। सही है ना। तो हम तो ऐसे मार्केट में जैसा चलते हैं वही हम रैंप पे भी चल लेते थे। ऐसे मटक मटक के चलने का हमको जरूरत नहीं है। ओके, है ना। तो मुझे ऐसा तो फील हुआ, तो वो तो एक है, तो मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि उसके बारे में टॉपिक में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा चाहे अभी कोई अगर गलत तरीके से कुछ हासिल कर भी रहा है, इफ दे आर गेटिंग एनीथिंग बाय रॉन्ग वे, देन दे विल नॉट एवर बी हैप्पी अगेन ना। यस, that is the main thing. At least they will know na that are I got this in by other way, it is not in the right way, I did not get judged in the right way. अगर किसी और को, मतलब मैं हिंदी में भी वापस बोलती हूँ, मुझे अंदर से तो मालूम होगा ना कि मैंने कौन सा लाइन पे मैंने वो क्राउन, मैंने कौन सा लाइन पे जीता, वो तो मेरे दिल को मालूम है ना। मैं अगर गलत तरीके से जीतूंगी तो मैं कभी वो क्राउन देख के खुशी नहीं हो पाऊंगी। है कि नहीं है। तो ऐसे पेजेंट शोज में मुझे लगता है सबको फेयरली करना चाहिए, क्योंकि पैसा देके आप एक बार खरीद लोगे, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, हर बार पैसा देके खरीदोगे क्या? नहीं ना। कभी ना कभी तो अपना टैलेंट के ऊपर भी लेना चाहिए। एक बार क्राउन आया तो आप क्राउन विनिंग बोल के दूसरा शो में कर सकते हैं। दूसरा शो में एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता, उसको मालूम हो। अपने नजर में तो वैल्यू नहीं रहता ना, अपने नजर में तो गिर जाते ना, तो क्या फायदा है ऐसे वैल्यू का। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज ब्यूटी पेजेंट एंड व्हाट इज फैशन शो? ओके, ब्यूटी पेजेंट इज समथिंग वेयर यू शो योरसेल्फ, how you are, how you could flaunt yourself. And in runway shows the difference is you are showing the dress, not yourself, the design you are showing. So this is the difference. Okay, runway and fashion show, beauty pageant का difference यही है। Okay, एक क्राउन से आपको यूज क्या हुआ? आप सेकंड रनर अप आया था ना, यूज क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अभी तो अर्निंग बोले तो अभी तक तो ऐसा कुछ अर्निंग मैंने किया नहीं है। एनी ऑफर्स? हाँ, ऑफर्स तो आया। कौन सा? मुझे अभी फिलहाल तो मुझे मोंटी प्रोडक्शन से एक रोल ऑफर किया है। मूवी? हाँ, मूवी रोल। मूवी रोल। और फिलहाल मैं एक शॉर्ट फिल्म में भी काम कर रही हूँ, वन रक्षक बोल के। और छोटा छोटा जैसे मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी मैं गई। लेकिन अभी फिलहाल मुझे एक क्या बोलूं मैं, एक जगह खाली है मेरे दिल में, विनिंग क्राउन लेना है। वो जब तक नहीं होता तुम पेजेंट से निकल के बाहर कुछ कर नहीं पा रही हो। क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास सेकंड रनर अप है, विनर का ट्रॉफी है, क्राउन भी है, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो गया साइज। पैसे कम दिए थे क्या? पैसे कम नहीं, उनका शायद पैसा कम था इसलिए छोटा क्राउन लेके आए। ओके ओके। तो एनीवेज विनिंग हुआ। फर्स्ट विनर आई मैं। कौन सा शो में? तो रिकॉग्नाइज्ड शो है क्या? वंशी कृष्णा है ना, वंशी कृष्णा। IBA उनके शो में। वो किधर हो? वारंगल में हुआ था।
फ्लैश ट्राई सिटी ट्राई सिटी फैशन शो में ट्राई सिटी फैशन शो, ओके तो उसमें मैं विनर प्राइज आया मुझे। लेकिन नेक्स्ट एक क्राउन वाला मुझे मेन है, मुझे नेशनल्स पे जाना है अभी, नेशनल्स का, क्योंकि इधर से सीख के पूरा एकदम प्रो बन के फिर नेशनल्स पे जाऊंगी। जाने से थोड़ा मतलब खुद को भी कॉन्फिडेंस रहेगा, खुद को भी इतना तो बिलीव रहेगा कि नहीं मैं कुछ तो कर सकती हूँ। इसीलिए फिलहाल अभी इधर ही करना है हैदराबाद में। करने के बाद जब मैं पूरा प्रो बन जाऊंगी फिर जाऊंगी नेशनल्स पे, क्योंकि ऑन द स्पॉट अब भी मतलब फ्लो में नेशनल्स पे चली गई, फिर कुछ भी उल्टा पल्टा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके और कितने शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल एक शो है 23 को, वी इवेंट्स बोल के, उधर कर रही हूँ मैं पार्टिसिपेट। और नेक्स्ट में जा रही हूँ वाइजैक में, क्राउन ऑफ आंध्र प्रदेश बोल के है, सतीश अड्डाला का। आपको विनिंग आया था, फर्स्ट रनर आया, सेकंड रनर आया, और क्या होना आपको कई को पार्टिसिपेट कर रहे? अच्छा लगता है मुझे। पेजेंट शो से, सॉरी रनवे शो से भी ज्यादा मुझे पेजेंट पे अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी बार क्राउन आता है ना उतनी बार अच्छा लगता है। ओके पार्टिसिपेट करने के लिए आप एक महीने में, एक 1 मंथ में, ఒక మంత్ లో ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు మీరు? अभी तक तो उतना किया नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7,000 एक मंथ में पे करने का, एक शो को? नहीं, सब शो को मिला के। इतना बाउंड्री बोल के डालिए आप, ये शो को इतना पे करना, फैशन शोज को ओनली 7,000 इज 1 मंथ को मैं डालना बोल के नहीं किया ऐसा। मेरा खर्चे का कोई लिमिट नहीं है। ओके डन। दुबई से और आउट ऑफ से आके इधर शो करते 3 लाख एंट्री फीस बोल के बोलते, आप रजिस्टर होते नहीं होता? वो देखना पड़ेगा कि उधर रजिस्टर होने से मुझे बेनिफिट क्या है। मुझे बेनिफिट है तो मैं सोचूंगी ना, नहीं तो विदाउट एनी बेनिफिट 3 लाख रुपए खर्चा करना నో యూస్. లైక్ आपको बेनिफिट, మీకు బెనిఫిట్ ఉంటే 3 లక్షలు కట్టడానికి మీరు రెడీయా? बेनिफिट है तो सोचेंगे, सोच सकते. बेनिफिट बोले तो क्या, मूवी ऑफर इधर से जाए ना? नहीं, मूवी ऑफर्स का नहीं है. और मॉडलिंग फोटोग्राफी रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए ना, रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए. मेरा इंटरव्यू से आपको रिकॉग्नाइज बहुत आता. ओके, वो तो हम देखेंगे बाद में. मेरे को देते 3 लाख बाद में देखेंगे ना, तो रिकॉग्नाइजेशन हुआ तो देख. आपको होना रिकॉग्नाइजेशन ना, होने के बाद मेरा जब बढ़ेगा, मेरा ये क्या बोलते हैं फॉलोअर्स, तब मैं सोचूंगी. ओके 5,000 रुपया दियो, 5,000 रुपया देते हो, फेक फॉलोअर्स 10 लाख आता. नहीं, वो ऐसे 10 मिनट में उड़ भी जाता, ऐसे 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 उड़ता है. ओके, वो बेकार है, बिल्कुल भी नहीं जाना वैसे में तो. क्योंकि जो भी है जेन्युइन फॉलोअर्स हुआ तो बेटर है. फेक फॉलोअर्स से क्या फायदा, जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या फायदा है उन लोगों से. और वैसे पहले तो मुझे हैदराबाद में जब मैं आई स्टार्टिंग, मेरे तो उतना जान पहचान भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब शुरू से ही एकदम चलो 1-2 दोस्त, मतलब एकदम क्लोज जो रहते हैं उनके साथ ही अप एंड डाउन वैसे ही रहता था. अभी ये 4 महीने से मैं जब खुद से सोचा नहीं मुझे अभी इसमें जाना चाहिए मॉडलिंग फील्ड में, उसके बाद से मेरे दोस्त काफी बढ़ गए. ये एक फायदा हुआ. दोस्त बढ़ गए. ओके, ये फैशन फील्ड में और बाहर? नहीं, फैशन फील्ड में ही. ओके, काफी पहचान में, मतलब एक बार देखे तो नेक्स्ट शो में भी वही जाके, मतलब कोई ना कोई तो मिल ही जाता है. बेस्ट फ्रेंड हुआ था कौन तो भी? हाँ है इसमें, ये फील्ड में. एक टास्क देता मैं, करते आप उसको फोन करके मेरे को 1 लाख रुपया होना अर्जेंट बोल के बोलो, क्या बोलते थे एक बार, अभी लाइव में करो. बेचारी, उसको क्या ही मैं बोलूं 1 लाख रुपए देने के लिए, वो खुद अभी ज्वाइन हुई है नौकरी पे. हाँ, बेस्ट फ्रेंड बोले तो बोल. आप बेस्ट फ्रेंड बोले तो किडनी बेच के देने के लिए बोलूं क्या मैं? नहीं हो सकता. अरे वो कोशिश करता ना करता. सर एक बात बोलूं मैं और एक क्वेश्चन, उन्हें आपको फोन करके मेरे कितना होना बोल के बोलते, आप देते क्या? हाँ, आप तो मैं तो दिया 1 लाख दिया. 1 लाख आप देने मेरा के बेस्ट फ्रेंड होता. 1 लाख देने का नौबत नहीं आया. I mean 1 लाख देने के लिए ऐसा सिचुएशन नहीं आया, तो देने का जरूरत नहीं पड़ा. चलो थोड़ा बहुत छोटा मोटा, क्योंकि मुझे भी
अर्निंग होने के बाद ही तो मैं देने के लिए सोचूंगी ना। हम्म मेरा तो भाई अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, हम्म मैं कमाती उमाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उड़ाती रहती हूँ। ये फैशन शो के जाके हाँ, बेचारे रो ले रहे घर पे हम्म कि सब पूरा 2 दिन बाद तुमको फैशन शो है, हम्म 2 दिन बाद तुमको पेजेंट शो है, और कितना करना है। हम्म तो मैं बोला नहीं, अभी भी करना है, हम्म जब तक मेरा दिल को सेटिस्फाई सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक करना है, जब हो जाएगा तब मैं छोड़ दूंगी। तो वो कब छोड़ूंगी मालूम नहीं, अभी तो शुरू किया है। और एक 10-15 साल के बाद छोड़ते हैं आप। इतना साल हो जाता क्या? आई नो आई नो आई नो, एक शो के बाद एक शो, एक शो के बाद एक शो, एक ये शो एडिक्शन, या एडिक्शन हो गया नया लोगों नया फ्रेंड्स आता, मोटे मोटे फ्रेंड्स आता, विनर्स आता। लोगों को एडिक्शन होता है दारू गुटखा बीड़ी वो सब का, ड्रग्स का। मुझे क्या एडिक्शन? दारू बोले तो क्या? अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ, कैसे रहता हो? वो तो मुझे मालूम नहीं है। मेरे को भी नहीं मालूम। तो वो सब का लोगों को एडिक्शन रहता है, हम्म, मुझे तो अलग अलग ही एडिक्शन आता रहता है, क्या क्या की एडिक्शन आता रहता है। हम्म, वाह, कब फर्स्ट स्टार्टिंग में मुझे एडिक्शन हुआ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट सीख लेना है, मेकअप आर्टिस्ट का। व्हाट अबाउट योर मेकअप आर्टिस्ट लाइफ? अभी है? आप सेल्फ करते? हाँ सेल्फ मेकअप करते? हाँ, मैं तो अपने शक्ल पे सेल्फ करके आई हूँ। ओके। तो इसके बाद भी मैंने मॉडल्स को भी किया है, फिर ब्राइड्स को भी किया है। जब मैं मॉडलिंग फील्ड से आने से पहले पहले का स्टोरी है ये। ओके। और अभी मैं घुस गई तो अभी मैं सिर्फ अपने आप को ही करती हूँ, बाकी किसी को नहीं करती। ओके। और उसके बाद तो मेकअप का हो गया फर्स्ट एडिक्शन। मेकअप खत्म होते कि चालू हुआ, मुझे जब पोक किया कि मुझसे नहीं होगा, तब तो मैं लग गई मुझे अभी मॉडलिंग बन करके मुझे मॉडल बन लेना है। अभी वो तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं भी मॉडल हूँ, मेरे छोटा नक लेके ही। कौन बोला था आपका छोटा? योर नोज इज नॉट शॉर्ट, इट्स क्यूट। थैंक यू। लेकिन मेरा यही नाक की वजह से मुझे चांस नहीं मिला, बहुत फील हो रहा मुझे। लेकिन अभी मैं सोचा ఇంకోటి చెప్పాలంటే, ఐ మీన్ ఇది తెలుగులోనే చెప్పాలి. లైక్ దేవకన్యల ముక్కు చిన్నగా ఉంటదంట, తెలుసా? యు నో దేవకన్య? मेरा अप्सरा फ्लैट, टाइप। या हमारा फ्लैट के बीच है तो अच्छा। रिएक्शन कुछ भी नहीं। ऐसे बोले तो मैं పొగిన్న దాన్ని హిందీలో ఏమంటారయ్యా బాబు, ఏం వస్తలేదు. मुझे नहीं आता ना उतना तेलुगु। देवकन्या तो चलो ठीक है, अप्सरा मेरे पीछे रहता मतलब। अप्सरा की बोलते सितारा। ओह थैंक यू। वाह, वाटर राइमिंग। मुझे ही बोल रहे थे, मुझे लगा आपके पीछे है क्या कोई। नहीं దేవకన్యల ముక్కులు చిన్నగా ఉంటాయి. లైక్ अप्सरा का नोस छोटी रहती, आपके लंबा जैसे, रहता है ना? आपका जैसे। नहीं छोटी रहती। तो चलो ठीक है, मैं अप्सरा ही सही हूँ। वही मेरा नेक्स्ट। नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए, ये बोल दिया तो फिर मेरा लुक बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही सेम अप्सरा टॉपिक వచ్చిందంటే नेक्स्ट लुक मेरा अप्सरा ही जे बोलते हाँ। वही जे मालूम हो गया मेरे को। नहीं कहीं को बोल रहे आप? मैं सोचा बोलूं क्या बोल के, फिर सोचा नहीं सिर्फ सबको मालूम चल नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट फिर शो मेरे में कॉम्पिटिटर ने सेम वही पहन के आ गई तो मैं क्या करूंगी? अभी मैं पहन रही, आप नहीं बोल के आप ही हिंट देना। नहीं हो सकता ऐसा, अभी कौन है कॉम्पिटिटर किसको मालूम। ओके एनीवेज देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लुक अप्सरा आटा చూసుకోండి। पहले ही बोल दे रहे। मैं ही बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सा शो में पार्टिसिपेट कर रहे बोले आप? वी इवेंट्स, मिस्टर मिस एंड मिसेस ग्लैम गाला, उसमें। ओके वो तो 23 को है, दिस मंथ 23 अगस्त। ओके। और इसके बाद सीधा वाइजैक। तो नेक्स्ट मंथ है आई थिंक। वाइजैक में जाना है मुझे। सतीश अड्डाला सर का ये क्या बोलते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है बोल के नहीं हो रहा। फिर उनका क्राउन ऑफ हैदराबाद में सोचा, क्राउन ऑफ हैदराबाद में करूंगी, वो तो शायद डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो कब आता मालूम नहीं मुझे। तो भी आई थिंक अपकमिंग या इंटरेस्टेड है बट पता नहीं कब। लाइक सतीश अड्डाला का शो में करना बोल के इंटरेस्ट है, कहीं को अब तक नहीं किया था। करना था उनके शो में। एक्चुअली मैं जब मिसेस सेलूर के लिए गई थी ना, ये वाला, उस टाइम पे वो चीफ गेस्ट थे, मतलब मेरा ऑडिशन भी उन्होंने ही लिया। फिर उनके उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया बोल के वो फाइनल पे नहीं आए, तो मुझे बुरा लगा। अरे मैं सोचा मैं सब
मतलब जितने जजेस लोग जूरी मेंबर्स से सब लोग आते होंगे, लेकिन उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने देखा तो उनका क्राउन ऑफ काकीनाडा, क्राउन ऑफ विशाखापट्टनम, फिर क्राउन ऑफ आंध्र प्रदेश, वैसा है। तो अभी फिलहाल तो काकीनाडा फुल क्लोज्ड। कल ही मैंने बात किया तो उनका क्लोज हो गया रजिस्ट्रेशन। तो मैं बोला ठीक है, मैं वाइजैक में ही जाती बोल के अभी नेक्स्ट प्रोग्राम उधर है। ओके। उसके बाद क्या है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे सब याद आता है। जैसे आज मुझे इधर आना था, ये कल रात को मुझे पता चला। ओके। तो मेरा ऐसा ही होता रहता है ऑन द स्पॉट। ओके। मैं किधर बाहर भी घूमने जाती हूँ, ऑन द स्पॉट रास्ते से मैं सोचती हूँ आज मुझे घूमने जाना है, तो मैं रास्ते से ही निकल लेती, उधर से ही निकल लेती। ए ब्रेक डाल के, ब्रेक वेक नहीं, गाड़ी रख के निकल लेती। ओके। तो ज्यादा सोचे, क्योंकि जिंदगी ऐसा चीज है ना, लाइफ ओके। ऐसा है, ज्यादा सोचे तो कुछ नहीं होता। जितना प्लानिंग करोगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। और अपन को लाइक सेल्फ को फैशन लाइफ कई को उतना इम्पोर्टेंट। यही क्वेश्चन मेरे दोस्त को भी पूछा था कि कौन? आप मतलब ऑडिशन में क्वेश्चन आंसर राउंड पे यही क्वेश्चन पूछा था। फैशन बोले तो वो तो मेरा क्वेश्चन है, कौन सा शो पे मैं रहता था उधर, जूरीज को मैं पूछता हूँ। जूरीज को? या ओके। तो मुझे फीलिंग है दैट एवरीबॉडी नीड्स टू बी फैशनेबल, क्योंकि अभी आप छपड़ी के जैसा घूमोगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं करता। आप जितना अपने आप को प्रेजेंटेबल रखोगे, जितना फैशनेबल बना के रखोगे, उससे आपको वैल्यू मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप किधर भी जाओ तो एटलीस्ट 10 लोग आपको घूम घूम के देखेंगे। तो अगर आप वही अगर छोड़ दिया, फैशन सेंस ही अगर आपने छोड़ दिया, फिर बाद में आपको क्या रहेगा लाइफ में। इसीलिए देखो मैं 35 हूँ, लोग अभी भी मुझे 25 समझते। मेरा 10 साल कम हो गया ना। 20 साल नहीं 25। तो अगर मैं ऐसा नहीं करती क्या होता, तो मैं अभी आंटी बन के घूमना था, आज मैं इधर बैठ के रहती नहीं। तो फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फैशन नो वन विल वैल्यू यू। कुछ तो भी सैड इंस्टेंट इसमें हुआ था आपको फैशन शो में? सैड इंस्टेंट तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। कमिटमेंट वगैरह कुछ तो भी पूछे क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब आपको नहीं पूछते हैं ऐसे? होता होगा, मुझे क्या मालूम, मुझे तो नहीं पूछा। आप भी 4-5 शो में पार्टिसिपेट किया था ना, एनी टॉक वैसा पूछा बोल के एनी टॉक? नहीं, ऐसा तो मुझे तो ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि मैं कभी भी अकेले किधर जाती नहीं हूँ। तो मुझे सब बोलने के लिए, सुनने के लिए ऐसा कुछ चांसेस आया नहीं अभी तक। और वैसे भी फैशन शो में जाओ, कुछ भी है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप दूसरे को कैसा लीनियंस दे रहे, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। ओके। मुझे तो ऐसा आज तक कभी आया नहीं कुछ भी। और मैंने अभी तक जितना भी किया सब अपने दम पे ही किया। दम पे ఏమంటారు? दम दम ఏమంటారు? दम्मो दम्मो। हाँ। एकदम बात बोले। आई नो, मुझे थोड़ा बहुत तेलुगु आता है, थोड़ा बहुत। यू वांट टू लर्न तेलुगु? कोई सिखाता ही नहीं है। मैं सिखाता हूँ अभी। बोलो। అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సితారా ప్రియ. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తాను. और ఐ డోంట్ నో. నేను ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను. वो तो मुझे आता है. ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను. ఇంటర్వ్యూ చేశాను, చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు. वो तेलुगु मुझे आता है. बोलो बोलो, यू वांट टू लर्न तेलुगु ना? हाँ, कॉम्प्लीमेंट देना इनडायरेक्टली. नो नो नो, इनडायरेक्टली तो है ना. ये बातों को क्या बोलते मालूम तेलुगु में? मस्का मारना? नहीं नहीं, गोल्डन वर्ड्स बोल के बोलते हो. मालूम है मुझे, उतना मुझे समझ में आता है. तो मैं हिंदी में ही बोल देती. मैं आज जिसको इंटरव्यू देने के लिए बहुत हैंडसम. और ये फील्ड में లేడీస్ రీతానా, లేడీస్ उसको आप రమ్మన్ అని పిలుస్తారా, వద్దు అని అంటారా? ఈ ఫీల్డ్ లోకి రండి అని పిలుస్తారా, వద్దు అని పిలుస్తారా? అర్థమైంది. సో ఐ విల్ సే those who are having interest in fashion field after marriage, like me, so if they are interested, they could come, they could prove themselves,
but for that you need to be confident from inside. हम्म You have to be brave enough, because if you are thinking sitting in your home, Arey, I also want to be a model, हम्म just sitting at home and thinking doesn't work out. हम्म You have to do for it. हम्म So you have to come on the stage, हम्म you have to face the audience, हम्म you have to face every negative positive dialogues, everything you have to face it. हम्म If you could face everything, then I think you could shine. हम्म सो जिसको इंटरेस्ट है वो तो आ ही सकता है, हम्म। लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत क्वालिटीज भी अंदर होना चाहिए. हम्म वो क्वालिटीज है हम्म तो आराम से आओ, हम्म आए तो आराम से होता. हम्म और ऐसा कुछ है नहीं हम्म। कि अभी इतना टाइम हो गया, शादी हो गया, अभी शादी के बाद लोग क्या बोलेंगे, उतना सोचोगे कुछ भी नहीं कर सकते. हम्म तो करने का मन है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटा है. हम्म फिर अफसोस रह जाएगा मरने के बाद कि अरे मैं भी तो कर सकती थी ना. सेम चीज मैंने भी सोचा था हम्म मॉडलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे, मैं भी तो कर सकती थी ना. हम्म तो कर सकती सोच के मैं तुरंत एक्शन भी ले लिया. हम्म अगर सोचती रहती तो इधर आके बैठती भी नहीं थी, हम्म और ये सर पे जो क्राउन है वो भी नहीं आता था, हम्म सोचने में ही निकल जाता था. हम्म फिर मैंने तो अपना स्टेप ले लिया. हम्म जिसको मन है कि मुझे भी मॉडलिंग फील्ड पे आना है, हम्म प्लीज कम. ओके या अब और वॉक करने में मेकअप कितना इम्पोर्टेंट है? वॉक का ट्रेनिंग जितना इम्पोर्टेंट है, मेकअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. हम्म शक्ल घटिया लेके वॉक करोगे साइड में निकाल देते बाजू में. कई को आप मैं नेचुरल बोल के बोल सकते ना आप जूरिस को? कैमरा में नेचुरल नहीं आता ना. जूरिस को नेचुरल बोल के बोल सकते ना. सब लोग मेकअप पहन के वॉक करते, मैं विदाउट मेकअप वॉक कर रही. कई को बोले तो एज मेरा नेचुरल है बोल के बोले तो आपको और एक 10 पॉइंट आता ना. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो मैं फैशन शो में कर लेती, हम्म उस पेजेंट में नहीं करती. ओके रिस्क नहीं लेना चाहिए जिंदगी में, और ये सब सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. रिस्क लिए तो लाइफ में रस्क आता जी. हाँ, वो डिफरेंट सिचुएशन पे. हम्म अभी ये सिचुएशन पे मैंने अभी सपोज मैंने साउथ इंडियन ब्राइड का लुक लिया, हम्म ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, हम्म ऐसे ही आ गई. हम्म कैसा दिखेगा? लोग शादी में जाते हैं, हम्म जिसका जो ब्राइड है, ब्राइड टू बी, हम्म वो भी जब शादी के मंडप पे घुसती है हम्म उस टाइम में मेकअप लगा के ही निकलती है. हम्म ऐसा ही होता है कि बिना मेकअप मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ. वो तो मैं घर पे हूँ नेचुरल ब्यूटी, हम्म बाहर नहीं हूँ. हम्म बाहर नहीं हूँ बोले तो ऑन द स्टेज नहीं हूँ. हम्म मैं बाहर भी जाती हूँ विदाउट मेकअप. हम्म उतना मुझे मेकअप डालने का मुझे आदत नहीं है. आई एम नॉट यूज टू टू मच मेकअप. बट मैं जब रैंप पे वॉक करती हूँ, मैं ना चाहते हुए भी मेरे मेकअप आर्टिस्ट मुझे बिठा के पकड़ा के मुझे मेकअप करके भेजते. कौन आपका मेकअप आर्टिस्ट? जो भी है स्टेज के उस पार मेकअप आर्टिस्ट रहते ना, ऐसे पकड़ के बिठा के मेकअप मार के भेजते रैंप पे. विदाउट मेकअप नॉट पॉसिबल, जा ही नहीं सकते. ओके, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता बोलते क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस रहने दो, नहीं रहने दो, पीछे वाले नहीं छोड़ते. ओके, मेकअप आर्टिस्ट नहीं छोड़ते, वो लोग तो लगा के ही मानेंगे. तो क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा मेकअप लगा के. लेकिन बाहर मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती. ब्लश पहने आप? ब्लश? हाँ, बिना ब्लश का कैसे होता? मैं तो नहीं पहने, आपको देख को मेरा ब्लश हो रहा. और एक ఫ్లటింగ్ పాయింట్. ఫ్లటింగ్ పాయింట్. పెళ్ళైన తర్వాత, పెళ్లి కాకముందు, పెళ్ళైన తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నారు, పెళ్లి కాకముందు ఎలా ఉన్నారు? बॉयज गर्ल्स सबको एक ही बात है, शादी से पहले बहुत खुश थे, शादी के बाद कोई खुश नहीं रहता. तो शादी से मैंने सीखा क्या बोले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल शादी करना नहीं चाहिए. सिंगल रहे तो बहुत शांति है, कोई खिच खिच पिच पिच टिच टिच कुछ भी नहीं है, बहुत शांति है. अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो, लाइफ पार्टनर अच्छा हो बोले तो लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से लाइफ पार्टनर फ्रेंड जैसा होना चाहिए. बिकॉज अभी लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर अगर सोचेगा कि नहीं मैं तो अभी उसका हस्बैंड हूँ, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए शादी में. क्योंकि शादी एक ऐसा चीज है ना, दोनों साथ साथ चले तो
अच्छा है, हम्म एक आगे एक पीछे चले तो एक्सीडेंट। हम्म और अभी के जमाने के लड़कियां तो वैसे है नहीं कि नहीं, पहले उनके हस्बैंड मारते थे, पीटते थे, कूटते थे। अभी अभी लेडीज है फ्रिज में डाल रहे, डब्बा में डाल रहे, राइस हाँ, कुकर में डाल रहे। लड़के डालने से प्रॉब्लम नहीं है तो लड़की डालने में क्या तकलीफ है? हाँ, लड़के लोगों ने कम किया क्या हरकतें? उनका तो नॉर्मलाइज हो गया है। हम्म चलो ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है। हम्म फिर एक गई दूसरा ही। हम्म और लड़कियों का क्या है, लेकिन सब में एक चीज है, गुड एंड बैड, हम्म अच्छा बुरा, दो चीज रहता है। अभी मान लो तुम शादी से खुश नहीं हो हम्म तो अलग हो सकते हैं। हम्म झगड़ा, मार पीट, खून खराबा करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म अगर कोई फिर भी ना माने तो एक्सटर्नल हेल्प लो। हम्म मेरे हिसाब से वो मुझे लगता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसा चल रहा है सिचुएशन, हम्म एक दूसरे को मारना, काटना, पीटना, धक्का मारना हम्म यूजलेस है ना। ओके। क्योंकि उस आदमी का भी एक लाइफ है, एक लेडी का भी लाइफ है। हम्म लेडी लड़कियों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है शादी के बाद। हम्म ज्यादातर तो लड़के ही छोड़ के आते ना। हम्म ट्राइबल्स में लड़के छोड़ के आते उनका घर, लड़कियों के साथ रहते। ओ क्योंकि मैं आसाम से हूँ, हम्म तो हमारे उधर जो मेघालय, शिलोंग वो साइड है, उधर के लोग, हस्बैंड लोग लड़कियों के घर पे आके रुकते, लड़की हस्बैंड के घर पे नहीं जाते। ओके। अदर देन दैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर लड़की जाना पड़ता है लड़के के घर पे। फिर लड़की गई लड़के के घर पे, लड़के का घर अपना घर है। ये भी एक सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। कि शादी के बाद सीखने के लिए है, अपना घर होना चाहिए। लड़की को अपना खुद का घर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक और बात मैंने सीखा, क्योंकि कभी भी झगड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, सेकंड में ऐसे ही तो बोलते ना, ये मेरा घर है, निकलो मेरे घर से। फिर मम्मी के उधर जाओ तो क्या बोलते कि नहीं, अभी तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है। ये बोलेगा तुम जाओ तुम्हारे पापा के घर पे, तो किधर है पापा का घर, हस्बैंड का घर। ये बोलेगा इधर जाओ, ये बोलेगा इधर जाओ। आपका लाइफ कैसे है शादी के? मेरे लाइफ के बारे में बात नहीं करना ही बेटर है। क्योंकि अच्छा है और चल रहा है ऐसे 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 आपका पानी पर्सनल, में। आप बोले सो, अभी तक बोले सो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या वो? क्या बोलूं मैं, है तो थोड़ा बहुत है। एक्सपीरियंस से ही तो लोग सीखते ना, बिना एक्सपीरियंस के तो बोल नहीं सकते। एक्सपीरियंस हुआ बोल के ही बोल रहे। राइट। तो स्टार्टिंग है इंडिपेंडेंट होना, और सेकंड है अपना घर होना। तो शादी करो ना करो अपना मर्जी। मैं तो अपनी बेटी को मैं वही बोलती हूँ कि तुम जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन एक बार शादी हो जाए, होने के बाद सोसाइटी ऐसा है कि वो लोग लड़कियों को कम, अपने इज्जत को ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। मेरे से इससे उससे का बात नहीं है, जो मतलब बात है, जेन्युइन बात है, मैं वही बोल रही हूँ। ज्यादातर सब लोग वही बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा शादी हो गया, अभी तुम तुम्हारे पति के घर पे जाओ। अब पति के घर पे कुछ भी हुआ तो बहुत कम है ऐसे मम्मी पापा कि अपने बेटी को सपोर्ट करते। अगर मान लो सपोर्ट कर लिया, किस्मत अगर खराब है तो पति ऐसा मिलेगा कि छोड़ेगा ही नहीं, हाथ धो के, ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ के रहेगा। इधर झगड़ा करेगा, घर पे भी शांति से रहने नहीं देगा। तुम घर से बाहर गई, उधर भी तुमको शांति से रहने नहीं देगा। तो भी किस्मत किस्मत का फर्क है। कोई कोई मार डालता है, कोई कोई ऐसे टॉर्चर करता रहता है। तो ऐसे बहुत टाइप का टॉर्चर है शादी के बाद। तो सबसे अच्छा रहता है क्या, अगर तुम इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर तुमको डिपेंड करने का जरूरत नहीं है। खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए जरूरत नहीं है कोई भी। तुम्हारा खुद का घर है, तब तो सोने पे सुहागा है। बिकॉज अगर ये बोला कि तुम मेरे घर से जाओ, ये बोला नहीं नहीं तुम्हारे पति के घर पे जाओ, तो बोल सकते ना, मुझे किसी के घर पे भी जाने का जरूरत नहीं, मैं अपने घर पे ही जाती। बेस्ट ऑप्शन। ओके। तो खाने के लिए भी टेंशन नहीं है, खुद का घर भी है, काम भी है, तो और क्या चाहिए? कोई चाहिए क्या? नहीं।
सोसाइटी ऐसा हो गया है कि डिपेंड ही नहीं कर सकते किसी के ऊपर, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को वैल्यू करना। राइट। अपने आप को वैल्यू नहीं करते तो अपने आप के लिए अभी स्टार्टिंग जो डेज है, जिंदगी का स्टार्टिंग डेज, उसमें अगर अपने आप को वैल्यू नहीं किया तो जिंदगी के एंड डेज, आई मीन जो शादी के बाद एंड डेज ही होता है, शुरू होता है, उस टाइम से खत्म होना चालू होता है। तो उस टाइम पे जाके रोना पड़ेगा, अरे मैं उस टाइम पे अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद अच्छा रहता मुझे, बोल के ऐसा फीलिंग आता। राइट। तो अपने आप को ज्यादा वैल्यू करना, जब टाइम है मम्मी पापा के घर पे हो उस टाइम पे अपना ग्रोथ के लिए, अपना फ्यूचर के लिए उस टाइम से ही सोचना शुरू कर देना। लड़कियों को स्पेशली, ओके। लड़कों को तो है ही, लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी दूसरों के बातों पे आ जाती। अभी के लड़कियां क्या कर रहे, एकदम छोटे छोटे लड़कियां, मोबाइल्स है, ये है, वो है, ये बोल रहा, वो बोल रहा, इसके साथ जाना, उसके साथ जाना, ये सब करके टाइम पास करना। और जब एक टाइम पे आ जाते, शादी का टाइम हो गया, तब जाके क्या करते, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर शादी के बाद जाके क्या करना, जाके दूसरों के घर पे मजदूरी करना। वो मजदूरी जैसे ही है ना, क्योंकि शादी करने के बाद तुम सब बोलेंगे ये अपना घर है, अपना घर का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी एक डेजिग्नेशन है आपको, आप कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आप बोल सकते ना, चलो मेरा काम है ना, तो एटलीस्ट मैं किसी को रख लेता हूँ, मेरा प्लेस पे कोई और आके काम करके देके चली जाएगी। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि इसको पैसा देने के लिए भी मुझे इसको मांगना पड़ेगा, वो बोलेगा अपना काम खुद करो, जरूरत नहीं है। तो वही मैं बोलना चाहूंगी कि शादी से पहले अपने आप को रेडी करो, करके फिर अगर किस्मत में होगा शादी करने का मन किया, करो। अच्छा लड़का मिले तो किसी से भी मत कर लेना, अच्छा लड़का मिले तो शादी करो, ना मिले तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का शादी हो गया? नहीं नहीं, ओ अच्छा लड़का। तो ऐसा लड़कियों को मैं बोल रही हूँ, अच्छा लड़का मिले तो हाथ उठाने से नहीं होता। नहीं, आप मेरे को बोल देना अच्छा लड़का बोल के। अच्छा लड़का मिले तो, अच्छा लड़का, आप ऐसा दे बता, अच्छा लड़का मिले तो बोला, ऐसा नहीं बोला। तो जो भी है, अच्छा लड़का मिले तो ही शादी करना चाहिए। अपने से आगे वाले का वाइब्स मिले तो, वाइब्स मिलना, थॉट मिलना, फिर अपना आदतें मिलना, नहीं तो फिर एक रहेगा अच्छा क्लीन एंड टाइडी, दूसरा आके पूरा घर गंदा करके जाएगा, फिर झगड़ा, वो भी एक जंजाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। सोच समझ के अपना पैर उठाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम में रोना ना पड़े, क्योंकि लोग बहुत रोते हैं जो दिखाई नहीं देता। मैंने तो ज्यादातर हिंदी में ही बोल दिया, नहीं? యా, చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ, లైక్ మన సితార ప్రియ గారిది చూసాము, అండ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వీడియోతో నేను మీ ముందు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ ఆ ఛానల్. బాయ్.